गरना नूरी पूरी की बारी आ गई। मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समस्त प्रशंसा যাবতীয় গুণগান করুণাময় মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি অব্যয় অক্ষয় নিরাকার ওয়াহদাহু লা শরীক, जिनार प्रशंसा लेखे बोले शेष करा जायनि एवं काल कियामत पर्यन्त जाबे ना। जरे बोलेन सुबहानाल्लाह। जिनि हच्छेन इज्जतेर दाता, जिनि हच्छेन जिल्लातेर दाता, जिनि कोन शब्द द्वारा 18,000 मखलुकात के सृष्टि करेছেন, সেই মহান রব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে বলি কোরআনের ভাষায় এক বাক্য আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পরে আমিনার লাল মরুর দুলাল, जिनार नाम हादिसे कुराने मोमिनेर जबाने जबाने, जिनि हच्छेन उम्मतेर कांडारी, रहमतेर भंडारी, यतीमेर सहारा, गरीबेर मददकारी मा आमिनार लाल आब्दुल्लाहर दुलाल, जिनार नाम आल्लाह पाक आसमाने राखेन अहम्मद, जमीने राखेन मोहम्मद। সেই নবীর প্রতি আমরা সকলে মিলে একবার দুরূদ শরীফ পড়ব। যেই নবী হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, যেই নবী আজকেও জিন্দা আছেন, কাল কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা থাকবেন, সেই নবীর প্রতি আমরা সকলে মিলে ভক্তি ভরে দিলটাকে খুলে আয়নার মতো পরিষ্কার করে ঝকঝক করে দুরূদ শরীফ পাঠ করেন। পড়েন আল্লাহুম্মা মাওলানা मुहम्मद वला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना शफियाना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वला आले मोहम्मद। आसमान सुंदर, जमीन सुंदर, आसमान सुंदर, जमीन सुंदर, आरो सुंदर गाछपाला। आसमान सुंदर, जमीन सुंदर, आरो सुंदर गाछपाला। ताहार चाইতে বেশি সুন্দর, তাহার চাইতে অতি সুন্দর আমার নবী কামলিওয়ালা। আল্লাহুম্মা, জোরে পড়েন।
सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद नबी नबी करिसी रे तुई नबी के तुई देखिली ना नबी नबी करिसी रे तुई नबी के तुई देखिली ना नबी के तुई देखिते चाइले नबी के तुई देखिते चाइले दुरूद पढ़ते भूलो ना अल्लाहुम्मा जोरे पढ़ेन सल्ले आला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेजे उपस्थित उलमाए किराम उस्ताजुल किराम तलबा इजाम বয়োজ্যেষ্ঠ বাবাজি ভাইরা আমার পর্দা নশীদ মা ও বোনেরা ছোট ছোট স্নেহের ভাই ও বোনেরা এবং কমিটির নওজওয়ান দাদা ভাইরা আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মন ভরা সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কিছু বলার পূর্বে একটা গজল বলি গর্ভে রেখেছে মা পেয়ে কত যন্ত্রণা গর্ভে রেখেছে মা পেয়ে কত যন্ত্রণা ধরেছে মা কত শক্তি বলে দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল মোহাম্মদ সুবহানাল্লাহ এ দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল আরে 10 মাস 10 দিন রেখেছিল যতনে কষ্ট করে মা গো আমার কত কষ্ট করে 10 মাস 10 দিন রেখেছিল যতনে কষ্ট করে মা গো আমার কত কষ্ট করে হাই গো মোর মা জননী দেখালে এই বিশ্বভূমে হাই গো মোর মা জননী দেখালে এই বিশ্বভূমে কাটা গাছে ধরা ইলি ফলে দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল এ দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল যারা মাকে ভালোবাসেন তারা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আরেকবার নবীর উপরে মহব্বত করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ अरे केह करे मायेर सेवा केह करे मायेर सेवा केउ बा करे अत्याचार तबु भालो बासा दिए मा करे छेलेर संसार जोरे बोलेन सुबहानाल्लाह अरे केह करे मायेर सेवा केह करे मायेर सेवा केउ बा करे अत्याचार तबु भालो बासा दिए मा करे छेलेर संसार स्नेह मायेर ममता কত যে দিয়েছেন মা স্নেহ মায়ের মমতা কত যে দিয়েছেন মা মনে পড়ে মায়ে রিয়া চল
দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল এ দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল গর্ভে রেখেছে মা পেয়ে কত যন্ত্রণা ধরেছে মা কত শক্তি বলে এ দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল এ দুনিয়া তবু কেন মায়ের চোখে জল। দাদা ভাইরা আপনারা ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এদিকে এসে একটু বসেন স্টেজের সামনে। ভাইজান কথাটা রাখেন। যাই হোক বাবাজি ভাইরা আমার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ওস্তাদ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি নুরুল ইসলাম সাহাব। আজকে আমি গর্বিত যে আমার ওস্তাদের কারণে আজকে আমি এই চেয়ারে আপনাদের সম্মুখে বসে কিছু আলোচনা করতে পারছি। ইনি আমাকে এতটা ভালোবাসেন, ইনি না হলে হয়তো আমি আজকে এরকম চেয়ারে বসে কিছু বলতে পারতাম না। ইনার ওসিলায় ইনার সাদকায় আমি এরকম বলতে পারছি। যাই হোক বাবাজি ভাইরা আমার বক্তব্যের দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। একবার জোরে সোরে দুরূদ শরীফ পাঠ করেন, পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। যাই হোক আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে ঘোষণা করে বলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ পাক বলেন, ওগো আমার হাবিবুল্লাহ, ওগো আমার বিশ্ব নবী, ওগো আমার দয়ার নবী, আপনাকে আমি পৃথিবীর জমিনে পাঠাইলাম রহমাতাল লিল আলামিন স্বরূপ করে পাঠাইলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধু মানুষের জন্য আপনাকে রহমত করে পাঠাই নাই, পশু পাখিদের জন্য রহমত করে পাঠাই নাই। আমি আল্লাহ পাক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে এই জগতের জন্য এমন কিনা পরজগতের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওগো আমার সোনা মানিকেরা, ওগো আমার জবান যুবকেরা, ও আমার মা খালারা শুনে যাবেন রাতের বেলা। শুধু তাই নয় আব্বাজি ভাইরা আমার আল্লাহ তাআলা আপনার হাবিবুল্লাহকে আপনার কিনা এই জগতের জন্য তো রহমত করে পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার আপনার নবীকে দুশমনদের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। চিল্লাই বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই রহমাতুল লিল আলামিনের কাছে একদিন জিবরিল আমিন এসে বললেন, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি গো, ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, আমি যখন জাহান্নামের মধ্যে গেলাম, ওই জাহান্নামের মধ্যে যাওয়ার পরে দেখলাম হযরতে নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতি জাহান্নামের মধ্যে জ্বলছে, হযরতে আপনার কিনা মুসা নবীর উম্মতিও জাহান্নামের মধ্যে জ্বলছে, হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতি জাহান্নামের মধ্যে জ্বলছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, আমি যখন আরেকটু আপনার কিনা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেলাম, আরো যাওয়ার পরে দেখলাম হযরতে ঈসা নবীর উম্মতিও জাহান্নামের মধ্যে জ্বলছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আব্বাজি ভাইরা আমার, এই কথা বলার পরে আব্বাজি আমার আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন বললেন, জিবরাইল রে বলো বলো, তুমি কি আমার উম্মতকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছো? কারণ ঈসা নবীর পরে আমার আপনার নবীর উম্মতি, তাই আমার আপনার নবী জিবরিল আমিনকে ডাক দিয়ে বললেন, ও জিবরাইল, তুমি কি আমার উম্মতকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছো? জিবরিল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, আমি আপনার উম্মতের কথা বলতে পারলাম না। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী জানাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আপনার কিনা জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাইল
বলো বলো তুমি কি আমার উম্মতকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছো? জিবরিল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আমি আপনার উম্মতের কথা বললে আপনার চোখ মোবারক থেকে জলগুলো বয়ে চলে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আপনার নবী আপনার কিনা? আবার জিবরিল আমিনকে জিজ্ঞেস করলেন জিবরাইল বলো বলো তুমি কি আমার উম্মতকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছো? জিবরিল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আমি যখন আর একটু কিছুক্ষণ জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেলাম আরো যাওয়ার পরে দেখলাম আপনার উম্মতিও জাহান্নামের মধ্যে জ্বলছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। এই কথা শোনার পরে বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাজি ভাইরা আমার আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন কি আর 3 দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যায় না? আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরামরা আল্লাহর নবীজিকে খোঁজার জন্য আপনার কিনা সমস্ত মক্কা নগরের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতেছে, কিন্তু কোন জায়গায় আল্লাহর নবীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আব্বাজি ভাইরা আমার ওগো আমার সোনা মানিকেরা ওগো আমার নওজোয়ান যুবকেরা খুব ভালো করে শুনে যাবেন আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন কি আব্বাজি আমার মক্কা নগরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন করতে করতে আব্বাজি ভাইরা আমার সাহাবায়ে কেরামরা আপনার কিনা একটা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলে গেলেন। জঙ্গলের দিকে যাওয়ার পরে দেখতেছে একজন রাখাল বন্ধু ওই জঙ্গলের ভিতরে আপনার কিনা ছাগল চড়াচ্ছে। কি চড়াচ্ছে? ছাগল চড়াচ্ছে। একজন রাখাল ওই জঙ্গলের ভিতরে ছাগল চড়াচ্ছে। সাহাবায়ে কেরাম ওই মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলেন ওরে আল্লাহর বান্দা তুমি কি মুহাম্মদ নামে কোনো ব্যক্তিকে দেখেছো? তুমি কি আনোয়ারুল বাশার নামে কোনো ব্যক্তিকে দেখেছো? ওই মানুষটি বললেন ওরে আল্লাহর বান্দারা শুনে নাও জেনে নাও কার নাম মুহাম্মদ আমি জানি না, আমি এতটুকু বলতে পারি এই জঙ্গলের ভিতরে একজন মানুষ 3 দিন ধরে কান্নাকাটি করে, এই মানুষের কান্নার আওয়াজ শুনে আমার ছাগল 3 দিন ধরে খানা পানি খাই না। আল্লাহর নবীর সাহাবারা বুঝতে পারলো হয়তো আর অন্যজন কেউ হতে পারে না, চলো যাই জঙ্গলের ভিতরে। সাহাবায়ে কেরাম আপনার কিনা জঙ্গলের ভিতরে চলে গেলেন। যাওয়ার পরে দেখতেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী আমার রাহমাতুল লিল আলামিন আপনার কিনা সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করে রব্বি হাবলি উম্মতি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওগো আল্লাহ আমার উম্মতের কি হবে? আমার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে নাজাত করে দাও। এইভাবে আপনার কিনা আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন আপনার কিনা সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করে ওগো আল্লাহ আমার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে নাজাত করে দাও। সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ। জায়উল হক 505 টাকা দান করেছে। মওলা গো তুমি এই দানকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও। একটু দোয়া করে দিই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ইয়া রাব্বুল আলামিন ওনার খানদানে যারা ইন্তেকাল করে গেছে মওলা গো জানি না অন্ধকার কবরের মধ্যে কি অবস্থায় রয়েছে মওলা, তাদের জানা অজানা সমস্ত গুনাহ খাতাকে maaf করে জান্নাতুল ফিরদাউসে জায়গা নসিব করে দাও। জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। বাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোহর কপালে। মহব্বত বলেন সুবহানাল্লাহ। ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোহর কপালে। ও মদিনারে তোর বুকে আমার নবী যার লাগি পাগল সবে, যার তরে হইল সৃষ্টি ত্রিভুবন। কাঁদি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেইখানে, কাঁদি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেইখানে। সহে না আহার পরানে ও মদিনার মাটি রে সকল
সুখ বুঝি তো ওহর কপালে ও মদিনা রে তোর কাছে গেলে আমি কত সুখী হইতাম জানে তোরে আমি বুঝাইব কেমনে রোজা মোবারক গিয়ে নবীজিকে সালাম দিয়ে রোজা মোবারক গিয়ে নবীজিকে সালাম দিয়ে বলিতাম মনের বাসনা ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তো ওহর কপালে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন আপনারই কিনা সিজদায় পড়ে এভাবে আপনারই কিনা কান্নাকাটি করতেছেন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আপনার আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলামিনকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলামিন আপনারই কিনা সিজদা থেকে মাথা তুলতে রাজি হয় না এমন করতে করতে আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের সাহাবী হযরতে আবু বকর সিদ্দিক আবার বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান আল্লাহর নবী রাহমাতুল্লাহ আলামিনের সাহাবী আপনার কিনা কথা শুনে বিশ্ব নবী আপনার সিজদা থেকে মাথা তুলতে রাজি হয় না হযরত আবু বকর বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আপনি নবী বলেছেন আমি আবু বকরের নেকি আপনারই কিনা আপনার যদি সমস্ত উম্মতের নেকি বুঝি কি এক পাল্লাই করা হয় আর আমি আবু বকরের একটা নেকি যদি এক পাল্লাই করা হয় আমি আবু বকরের নেকির পাল্লাটা বেশি বাড়ই হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি সমস্ত নেকি বুদিকে আমার সমস্ত নেকি বুদিকে আপনার উম্মতের জন্য হাওয়ালা করে দিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবীজি গো আপনি সিজদা থেকে মাথা টুকু উঠান আল্লাহর নবী আপনার কিনা সিজদা থেকে মাথা তুলতে রাজি হয় না এমন করতে করতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত ওমর বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আপনি নবী বলেছেন আকাশের মধ্যে যতগুলো নক্ষত্র দেখা যায় ওই রকম নক্ষত্রর মতো নাকি আমি উমরের নেকি বুদ্ধি রয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি উমরের সমস্ত নেকি বুদ্ধি কি আপনার উম্মতের জন্য হাওয়ালা করে দিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দয়া করে সিজদা থেকে মাথা উঠান আল্লাহর নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন আপনারই কিনা সিজদা থেকে মাথা তুলতে রাজি হয় না এমন করতে করতে আব্বাজি আমার হযরতে উসমান গনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান হযরতে উসমান গনির কথা আল্লাহর নবী মাথা উঠাতে রাজি হয় না হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীজিকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান এমন করতে করতে সমস্ত সাহাবারা এক এক করে বলতে আরম্ভ করেছে কিন্তু আল্লাহর নবী আপনার কিনা কারো কথায় আপনার সিজদা তুলতে রাজি হয় না এমন করতে করতে একজন সাহাবী বললেন ওরে নবীর সাহাবীরা শুনে নাও আল্লাহর নবী হয়তো এমনিতে সিজদা থেকে মাথা তুলবে না চলো হযরতে ফাতেমাকে ডেকে নিয়ে আসা যাক হয়তো এই ফাতেমার কথায় আল্লাহর নবীজি মাথা তুলতে রাজি হবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরতে ফাতেমাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো ফাতেমা আব্বাজানকে দেখে বলতেছে আব্বাজান আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান হযরতে ফাতেমার কথা আল্লাহর নবী মাথা তুলতে রাজি হয় না এমন করতে করতে আব্বাজি ভাইরা আবার হযরতে ফাতেমা আবার জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি গো नारे तकबीर नारे रिसालत मसले के आला हजरत आइनुल्लाह बीबी आइनुल्लाह साहेब 1500 টাকার দাতা आइनुल्लाह साहेब 1500 টাকার দাতা नारे तकबीर नारे रिसालत
আব্বাজি ভাইরা আমার এই আইনুল্লাহ সাহেব যে নিয়তে যে আশায় দান করেছে মাওলা গো তার মনের আশাকে পূরণ করে দাও রব্বুল আলামিন। তার বাড়িতে যদি কোনো রকমের বালা মুসিবত থাকে মাওলা তার বালা মুসিবতকে তুমি তোমার ওনার বাড়ি থেকে দূর করে দাও। সকলে মেরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহর নবীর জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনারই কিনা সিজদা থেকে মাথা তুলতে রাজি হয় না। ফাতেমা আপনারই কিনা বললেন ওগো আব্বা জান আপনি যদি সিজদা থেকে মাথা না উঠান আমি আমার দুই সন্তানকে কারবালার প্রান্তরে আমার দুই সন্তানকে তোমার আপনার কিনা তোমার উম্মতের জন্য আমি হাওয়ালা কুরবান করে দিলাম। আল্লাহর রাস্তায় আমি আমার সন্তানদেরকে কুরবান করে দিলাম। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাজি ভাইরা আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী আমার রহমাতুল লিল আলামিন ফাতেমাকে বললেন ফাতেমা তুমি কি এমন দোয়া করলে রে বেটি তোমার দোয়াখানা কি আমার আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছে তোমার দোয়াখানা কি আমার আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে নিয়েছে। এই কথা বলার পরে আব্বাজি আমার আল্লাহর নবী বললেন ও ফাতেমা তোমার যে বড় সন্তান হযরত ইমামে হাসান যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবে দুনিয়া থেকে যেদিন বিদায় নিয়ে যাবে দেখবে সেদিন আপনার কিনা জহর খেয়ে আপনার দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। আর তোমার ছোট সন্তান হযরত ইমামে হুসাইন যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে রে বেটি সেই দিন দেখবে কারবালার প্রান্ত রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তোমার ছোট সন্তান ইমামে হুসাইন কারবালার প্রান্তরে আপনার কিনা শহীদ হয়ে যাবে। এই বলে আপনার কিনা আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে রিসালাত মাসলেকে আলা হযরত মাসলেকে আলা হযরত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি রাহিল রাজা সাহেব হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি রাহিল রাজা সাহেব নারে তাকবীর নারে রিসালাত। একই দিন একই ভোরে মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একই দিন একই ভোরে মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে ওগো আসিলেন মোর দয়ার রাসূল সেই রাস্তা ধরে। একই দিন একই ভোরে মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। নবীর উপরে মহব্বত করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরে ডেকে বলে নূর নবীজি ও গবুরি শোনো না ভারী পুটলি নিয়ে তুমি যাবে কথাই বলো না কার ভয়েতে যাচ্ছ তুমি এই মক্কা শহর ছেড়ে একটুখানি বলো বুড়ি আমার হুজুরে ওগো পুটলি তোমার পৌঁছে দেব যাবে যত দূরে। একই দিন একই ভোরে মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে ওগো আসিলেন মোর দয়ার নবী সেই রাস্তা ধরে। একই দিন একই ভোরে মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। যাই হোক আমাদের বক্তা এসে হাজির হয়ে গেছেন হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি রাহিল রাজা সাহেব ওনাকে আপনাদের সম্মুখে এখন তুলে দেওয়া হবে। আপনাদের সুমধুর মিষ্টিবাসী জীবনী বক্তা হেলালউদ্দিন কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন।
আপনাদেরকে বলবো যারা এদিকে ওদিকে রাস্তা ধারে ঘোরাফেরা করছেন আপনারা তাড়াতাড়ি করে এই মেহফিলে এসে বসে যান। আজকে কারবালার বয়ান হবে খুব সুন্দরভাবে। হযরত আল্লামা মাওলানা হেলালুদ্দিন আপনাদেরকে মধুর সুরে আপনাদেরকে শোনাবেন ইনশাআল্লাহ। তাই এখন আমার বক্তব্য আমি এখান থেকে ইতি করলাম। বলার মাধ্যমে কোনো রকমের ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহর রাস্তায় maaf করবেন। তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুবহানাল্লাহ, বেশক, মাশাআল্লাহ। আমি যুবক কমিটিদেরকে বলবো যে তোমরা নিজ নিজ কাজ দেখবে দায়িত্ব মনে করে নিজের কাজগুলো করতে হবে। আমি যুবক কমিটিদেরকে বলবো যে তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করো। অফিসে কয়েকটা থাকো, নিজের দায়িত্ব পালন করো। ব্রাদার, সময়টা অনেক হয়ে গেছে। আমাদের জীবনী বক্তা সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যে উনি পৌঁছে যাবেন। যেনারা এখনো আসেননি, যেনারা রাস্তার আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে আছেন, যেনারা পানের দোকানে মিষ্টির দোকানে বসে আছেন, আমি অনুরোধ করে বলছি যে আপনারা তাড়াতাড়ি করে পবিত্র সভায় এসে যান। কারণ আমাদের মুফতি সাহেব স্টেজে উপস্থিত হয়ে গেছেন আর ওনার পরে আমাদের জীবনী বক্তা সাহেব এসে হাজির হয়ে যাবেন। বাজারে দোকানের সামনে কেউ ভিড় জমাবেন না, এটা কোনো নাটকের জায়গা নয়, কেউ ভিড় জমাবেন না। তো তবে যাই হোক কিছু না বলি মুফতি সাহেবের স্বাগতের জন্য একবার সকলে মিলে নারা লাগাই, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাকে আলা হযরত, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, হযরত আল্লামা ওয়া মাওলানা মুফতি রাহিল সাহেব, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আইয়ে হযরত লা তাখির। आवाज को बढ़ा दीजिए। अजीज बच्चों, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे बुजुर्गों, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अदबन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात सिमट कर बैठे हैं, आगे थोड़ा आ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा हसीन लगेगा। थोड़ा आगे आ जाएं, सिर्फ खसक जाए, थोड़ा खसक जाएं आप हजरात, सिमट कर बैठे हैं। थोड़ा आगे आ जाएं, सारे लोग आगे आ जाएं। और इंशाअल्लाह जो भाई खड़े हैं, उम्मीद है आप हजरात भी स्टेज पर आकर बैठे हैं। ये स्टेज आप ही के लिए सजाया गया है। आगे आ जाए, आप लोग खड़े ना रहें, यहाँ बैठ के सुने, बाअदब होके सुने, पता चले कि गुलाम नबी बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल हामिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखमसतुल लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी गम्मी मुग़रक़ुन खुद यदी शहील लना अशकालना। बकारी ख़िशे हैरान बगिथनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशान बगिथनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन, तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यान बगिथनी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
आइए कुछ अरसो मारू से कब्ल बारगाह रिसालत माब अलैहि तय्यतु सना में पूरा मजमा, आगे से पीछे दाएं से बाएं अपने प्यारे आका सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अच्छे लोगों की पहचान है कि जलसागाह में बैठना। आप जो बैठे हैं ना, या आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी तरबियत की है। ये अच्छी वालिद या वालिदा यानी माँ और बाप, जब इंसान बच्चे की अच्छी तरबियत करता है तब वो बच्चे जलसागाहों में बैठकर अपने रब अपने रसूल की फरामीन को सुनकर अमल करने की कोशिश करता है। लेकिन वरना जलसाओं में बहुत से लोग आते, घूम के चला जाता, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुर्बे कयामत वलदु ज़िना। देखिए, इससे पहले एक बात और बता दूं, जो दवा जितनी कड़वी होती है वो उतना उसमें फायदा होता है। और मैं कड़वा बोलने का आदी हूं दोस्त, और जो नश्तर लगाता वो दुश्मन नहीं होता आपका। ये बात समझ लें। मेरे पैगंबर ने फरमाया, कुर्बे कयामत वलदु ज़िना की तादाद में इजाफा हो जाएगा, वलदुल हराम की तादाद में इजाफा होगा। उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान, उसकी शनाख्त क्या होगी? उसकी शनाख्त ये होगी कि मस्जिद के सामने गाना बजाएगा, समझ जाना कि दुनिया में वलदु ज़िना की तादाद में इजाफा हो गया है। जब गाना सुनने का आदी बन जाए, नात सुनना बंद कर दें, तब आप समझ जाएं कि समाज में गंदी नस्लें पैदा होना शुरू हो गई है। जब आप समझे जलसागाहों के नाम पर घर में ये कहकर कि मैं जलसा सुनने, नबी की सीरत सुनने जा रहा हूँ, जीवनी वक्ता को सुनने जा रहा हूँ, और जब जलसागाहों में आकर अय्याशी मक्कारी करके घर में चला जाए, तो समझ जाना कि तुम वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो गया है। अपनी आने वाली नस्लों को अगर बचाना है तो जलसागाहों में बैठना पड़ेगा, नबी की सीरत सुननी पड़ेगी, उन सीरतों पर सुनकर अमल करना पड़ेगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायतिहिम, यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि हर इंसान के महत्तहत वालों के मुतालिक उस इंसान से पूछा जाएगा। मतलब क्या? एक बाप अगर नमाजी है तो अब ऐसा नहीं कि उससे कयामत में सवाल होगा, नहीं, एक बाप से पूछा जाएगा, तुमने अपने औलाद की तरबियत की कि नहीं, अपनी बेटी की तरबियत की या नहीं, अपने बेटे की तरबियत की या नहीं। एक भाई से पूछा जाएगा, अरे तेरा छोटा भाई था, तेरी छोटी बहन थी, तूने उसकी अच्छी तरबियत की या नहीं। वो जितने बड़े हैं, हर बड़ा से सवाल होगा, एक दादा से सवाल होगा, वो घर का प्रधानमंत्री होता है, वो घर का मुखिया होता है, उस मुखिया से कयामत के दिन सवाल होगा कि तेरे मातहत जितने लोग थे, यानी तेरी बेटियां थी, तेरी पोतियां थी, तेरे बेटे थे, उन लोगों की अच्छी तरबियत की या नहीं। एक बाप के सामने बगैर इजाजत के बेटी घर से बाहर चली जाती, एक बाप खामोश क्यों नजर आता? अरे पूछता क्यों नहीं, ए बेटी तू मेरी इजाजत के बगैर बाहर क्यों गई? एक बाप की मौजूदगी में एक बेटा घर से मगरिब से पहले निकलता है, रात के 12 बजे गुंडागर्दी करके आता है। एक बाप की जिम्मेदारी है, तुमने अपनी बच्चे से पूछा क्यों नहीं? अरे 12 बजे रात में तू कहां जाके अय्याशी व मक्कारी कर रहा था? तुमने अपनी बेटियों को छूट दे दिया, तुमने अपनी औलादों को छूट दे दिया। तेरा बेटा रात के 12 बजे दूसरी की बेटी के साथ अय्याशी व मक्कारी कर रहा है, तू खालिस नमाज पढ़ ले, ये कामयाबी की दलील नहीं, कयामत के दिन तेरी पकड़ होगी। तू तो नमाजी था, तू तो मस्जिद का नमाजी था, मैदान का गाजी था, काबे का हाजी था, मगर तेरा बेटा क्यों बिगड़ा, तेरी बेटी क्यों बिगड़ी? रब के सामने क्या सवाल का जवाब दोगे? इसीलिए धरती पर अपनी औलादों की अगर नस्लों की हिफाजत करनी है,
तो फिर उसे अपनी बेटियों को फातिमा की कनीजा बना दो। नबी की बेटी की चादर का वास्ता उसे तुम दीन से जोड़ दो, अपने बेटों को मदरसे से जोड़ दो, दीन इतना पढ़ा दो कि तेरा बेटा बिगड़े नहीं बल्कि जहां भी जाए रास्ता चले तो उसकी अदा बताए नबी का गुलाम जा रहा है। तेरी बेटी कॉलेज जाए, स्कूल जाए तो उसका चलन बता दे फातिमा की कनीज जा रही। समझा? बड़ा अफसोस होता है मेरे दोस्त, बड़ा दर्द होता है मुझे अपने कौम के लोगों, अपने कौम के नौजवान बच्चों और इन मेरी बेटियों बहनों को देखकर अफसोस होता है। रोजे मर्रा की कहानी है। आप देखें, आपके इस बस्ती से भी, हर बस्ती से हमारी कौम की बेटी स्कूल कॉलेज के नाम पे पढ़ने जाती है, ट्यूशन पढ़ने जाती है। मना नहीं, इल्म हासिल करो, जरूरत है पढ़ना, डॉक्टर बनना जरूरी है, इंजीनियर बनना जरूरी है, मगर कैसे? मेरे पैगंबर ने फरमाया इंग्लिश भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, साइंस से भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, कंप्यूटर भी पढ़ो, मगर याद रखना पर्दे के दायरे में पढ़ो, शरीयत की हुदूद में पढ़ो। तुम्हारी बच्ची यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है भूले बाल, ये इजाजत किसने दी? भूले बाल। जब तेरी बेटी अरे ट्यूशन पढ़ने जाएगी, कॉलेज में जाएगी, यूनिवर्सिटी में जाएगी, बताओ दूसरे की नजर पड़ेगी? नजर उसकी फिर जो है उसकी नजर बहकेगी कि नहीं? इसकी नजर जाहिर है बहकेगी। फिर तेरी बेटी से दिल लगाएगा, लेकर के भागेगा। ये तेरी कमी है। अगर तुमने अपनी बेटी को दीन पढ़ाया होता, स्कूल भी भेजा होता, नबी की शरीयत भी पढ़ाया होता, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा की किरदार अगर पढ़ाया होता और ये कहा होता फातिमा का किरदार ये है, अरे जब तक दुनिया में पैदा हुई उस वक्त से लेकर कब्र तक जाने में किसी गैर महरम ने एक बाल नहीं देखा। तेरी बेटी खुले आम अरे बेपर्दा होके स्कूल जाती है, ट्यूशन पढ़ने जाती है। तुमने शरीयत की धज्जियां उड़ा दी, तुमने शरीयत को कुचल के रख दिया। ऐसी तालीम की कोई जरूरत नहीं जिस तालीम की वजह से इस्लाम की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हो। ऐसी शरीयत, ऐसे इल्म की जरूरत नहीं। हाँ, जिस इल्म के शरीयत के हुदूद में रह करके बच्चियां इल्म हासिल करे, इसकी शरीयत ने इजाजत। क्या समझा आपने? बड़ी अफसोस होता है। आज इस जलसा से एक पैगाम देता हूँ, मेरी बातें कड़वी है मगर 100% सच्ची है। अगर अमल कर लें आपकी दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। टाइम पास करने वाला खतीब नहीं है। आपका वक्त भी कीमती, मेरा वक्त भी कीमती। इस कीमती वक्त में कुछ पैगाम लो मेरे भाई, होश के नाखून लो। इस जलसे के नाम पर एक बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टा के जाती है, तुम पूछते नहीं? तुम दीनी मजलिस में जा रही हो, तेरा बाल खुला क्यों है? तुम मेकअप करके क्यों जा रही हो? किसको दिखलाने जाती हो? जरा पूछा आपने? किसी ने नहीं पूछा। तेरा बेटा अरे जब दीन सीखने जाए, जलसा गाहों में जाए, तुमने पूछा तेरा बेटा नंगा सर क्यों जाता है? तुमने उसको कहा अबे तू दीन सीखने जाता है, नबी की शरीयत सीखने जाता है, जलसा में जा रहे हो, बेटा टोपी कहाँ तेरी? तुमने कभी पूछा? नहीं पूछा। ये आता क्यों है? जो लोग बाहर घूमता है वो जलसा सुनने नहीं, दूसरे की माँ बहनों को तकने के लिए, दूसरे की माँ और बेटियों को तकने वाले गद्दारों सुन लो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तेरे साथ होगा। तुम कैसी किसी की बेटी पर बदनिगाही डालोगे, तेरी भी बेटी को कोई भगा के ले जाएगा, तेरी बेटी को भी तेरी बेटी को भी अपने जाल के फांसे में फंसाएगा। इसीलिए दूसरी की बेटी पर बदनिगाही डालना छोड़ दो। अगर तुमने दूसरे की बेटी पर बदनिगाही डाली, उसको अपने नाजायज मोहब्बत में फंसाया, मेरे आका फरमाते हैं कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा तेरे साथ होगा। तुम आज दूसरे की बेटी के साथ करोगे, मेरे नबी का फरमान है कल तेरी बेटी के साथ ऐसा। क्या तुम चाहते हो हमारी बेटी, हमारी बहनों के साथ ऐसा हो? अफसोस होता है मेरे भाई। आपको मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अरे जब मदीना शरीफ के बाजार में मेरे रसूल की बेटी की एक कनीजा यहूदी मार्केट के अंदर गई, गौर से सुनिए, आवाज को थोड़ा कम कर दो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं? अरे समझ में आती है?
समझ में आनी चाहिए मेरी पूरी बात। सुने और इस पैगाम को नोट कर लीजिए, बार बार सुनिएगा, इस पर अमल की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। सुनते चले, मदीना शरीफ की बाजार में, मदीना शरीफ की बाजार में एक नबी की बेटी की कनीजा, नबी की उम्मती की एक खातून जेवर खरीदने मदीना के बाजार में गई। यहूदी दुकानदार था, जब बाजार में सोना खरीदने के लिए गई, क्योंकि ये मुसलमान की बेटी बड़ी हसीन थी, हुस्नो जमाल की पैकर थी। उस यहूदी नौजवान दुकानदार की जब नजर पड़ती है, इसने कहा मेरी दिल की तस्कीन को तुम मिटा दो, तुम्हें सोने से तौल दूंगा, तुम्हें सोने का जेवर फ्री में दे दूंगा। ये कहती है तेरा सोने को मैं अपने कदमों के धूल के नीचे रखती हूँ रे, तेरी सोने की क्या औकात, मैं अपनी आबरू का सौदा नहीं कर सकती, मैं मुसलमान की बेटी हूँ। मगर इस जालिम यहूदी ने फिर क्या किया, इस मुसलमान की बेटी की जबरदस्ती करने लगा, हाथ को पकड़ने लगा। मार्केट गैर मुस्लिम यहूदियों का है, अब वहां कोई मुसलमानों की दुकान नहीं। ये मुसलमान की बेटी आवाज लगाती है कोई इस्लाम का शहजादा जो इस खातून की आबरू को बचा ले, इज्जत इसकी लुट रही है, इज्जत को लुटने से बचा दे। उस यहूदी मार्केट के अंदर एक मुसलमान नौजवान बच्चा सब्जी की दुकान में सब्जी खरीद रहा था। उसने जब ये आवाज सुनी कि मेरी कोई ईमान वाली बहन ने मुझे आवाज लगाई है कोई मुसलमान का बेटा जो मेरी आबरू लुट रही है, इसको लुटने से बचा दे। वो तन्हा मुसलमान का बेटा आगे बढ़ता है, आगे आने के बाद अपनी हाथों से ऐसी वार करता है, बेटी के हाथ को उस यहूदी के पंजे से छुड़ाकर पीछे लाता है। लाने के बाद वो कहता है, अब वो अपनी उस बच्ची को, उस मुसलमान की बेटी को पीठ के पीछे लाया, ऐसे सीना सीपर हो गए। अब वो सारे यहूदी कहने लगा देखो आज हमको मारने आ गया। 100 यहूदी जमा हो गए। ये मुसलमान का बेटा ऐलान करता है, ओ यहूदियों कान खोल करके सुन लो, जब तक इस मार्केट के अंदर एक कलमा पढ़ने वाला रहेगा तब तक किसी मुसलमान की बेटी की आबरू लुटने नहीं दूंगा, जान दे दूंगा, मगर अपनी बहनों की इज्जत और आबरू को लुटने नहीं दूंगा। ये गैरों से हमारे भाइयों ने ऐसे अपनी कौम की बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की, मगर तुम वो कलमा पढ़ने वाले खुद अपनी कौम की बेटियों की आबरू के लुटेरे बन गए। पता तू क्या करेगा, थोड़ी सी दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, थोड़ी सी इस दिल को खुश करने के लिए तुमने इन गंदी चीजों का सहारा लिया। यकीनन याद रखना कयामत के दिन बेटा तुझे रब का सामना करना पड़ेगा, रसूल का सामना होगा। पता इन मजलिसों में तू ऐसी सोचो फिक्रे लेकर के आता है, इतनी गंदी इतनी पलीद सोच लेकर के आता है, ऐसी सोच जो गंदी और पलीद हो, ऐसी सोच लेकर के दीनी महफिलों में आते हो। तौबा कर लो, क्योंकि मालूम है ऐसी सोच लेकर के आते हो जो तेरे दिलों में है, यहाँ कोई नहीं जानता, मगर दिलों के भेद को बताओ खुदा जानता है कि नहीं? खुदा जानता है ना? बता, अगर तेरे दिल में खुदा का डर होता, ऐसी गंदी सोच लेके तो इन महफिलों में नहीं आता, बल्कि ये सोच के महफिल में आता, ऐ मेरे मालिक मैंने पीछे जो गुनाह किया तो किया, आज इस महफिल में जाने के बाद मैं तौबा करता हूँ, पीछे जो गुनाह किया तो किया, इस महफिल में उठने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। तौबा करना मेरा काम, मगफिरत फरमाना रब का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती राहिल साहब 500 रुपए तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। ये हमारे रुवेल भाई के वालिद यानी मोहतरम अकबर अली, वाकईतन ये हर दिल ये लोग हिस्सा लेता है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मालिक इनके बच्चों की कमाई में बरकत अता फरमा, इनकी कमाई में बरकत अता फरमा, हर हवादे साथे जमाना से बचा, इनकी नस्लों को आबाद कर दे मौला, शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दे। एक साहब
अच्छा नाम नहीं बताया, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे पसंद भाई है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी बच्चियों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी बीवी की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक साहब और 100 रुपए दे करके ही गए, अल्लाह ताला उनकी उम्र में। ये हमारे डोमा पीर का बड़ा मुखय्यर आदमी, गरीब जरूर है मगर दिल का अमीर है, और ये दे करके साबित करता है कि अरे हम दिल के अब गरीब, अरे माल के गरीब जरूर है मगर दिल के अमीर है। आपके जलसा में ये डोमा पीर का शख्स है, यानी हमारा झुंटू भाई ने 200 रुपए से हिस्सा लिया, ये हमारे काका कल 300 रुपए से हिस्सा लिया था, आज 100 रुपया आपके जलसा को दे रहा है, यानी रोजाना दे रहा है। दुआ करता हूँ मेरे खालिक को मालिक हसनैन करीमैन के सदके इनकी नस्लों को आबाद कर दे, इन्हें मस्जिद का नमाजी बना दे, इन्हें शरीयत व सुन्नत का पाबंद बना दे, इनकी बच्चियों को फातिमा की कनीज बना दे। हमारे मदरसे के मेंबर साहब कल 300 रुपए दिए थे, नारा लगाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। यह हमारे मुफती साहब मदरसे के मेंबर हैं, इन्होंने 500 रुपये से आपके जलसा में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला ये बीमार हैं, सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला इनको इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। कहते हैं आमीन, आमीन बोलो यार, माशाअल्लाह। अच्छा ये आली जनाब मोहतरम रुकी साहब कल इन्होंने गलेबन 500 रुपए दिया था और आज इन्होंने 150 रुपए से हिस्सा लिया है। जल्दी जल्दी आ जाए, तकरीर होगी फिर, जल्दी जल्दी आ जाए। जो लोग देने वाले हैं एकदम बिल्कुल फटाफट आ जाएं। ये जलसा में हिस्सा लें, कोई जरूरी नहीं कि 500 से 10 रुपया है तब भी लीजिए, 100 रुपया से भी हिस्सा लीजिए, इसीलिए कि यही रुपया काम आने वाला है। ये उलमा गवाही देंगे, ये अवाम गवाही देगी और ये कहेंगे रब की बारगाह में मालिक अरे ये 100 रुपया दे करके तेरे नबी की दीन सीखने के लिए जलसागाह में हिस्सा लिया था मालिक। ये सारे उलमा गवाही देंगे, यही रुपया काम आएगा। ये हमारे ऑपरेटर मोहतरम अनवार भाई के लड़के, अनवार साहब के लड़के ने 100 रुपए से दिया, ये हमारा भाई 100 रुपए दिया, और एक चचा ने 100 रुपए दिया, और एक भाई साहब 100 रुपए दिया। जल्दी आ जाओ बेटा, माशाल्लाह। क्या नाम है? अच्छा नसीम अख्तर साहब ने 500 रुपए दिया। नारा लगाइए हजरत, जोरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, 500 रुपया का दाता। अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद कर दे। ये हमारे 5 भैया के अली जनाब मोहतरम हलीम भाई, ये टेम्पू चलाता मगर 100 रुपए से हिस्सा लिया। ये हमारे भाई साहब नाम बताना, खैर अल्लाह इनकी जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। ये हमारे कुतुब शाह गौरी है, इन्होंने 100 रुपए से हिस्सा लिया। ये डोमा पीर के रहने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डोमा पीर वाले लाई के मुबारकबाद है, ये दाम करने पे पीछे नहीं। अल्लाह ताला इनकी नस्लों को आबाद रखे। ये हमारे अजीजम जाहिदुर भाई, इन्होंने 100 रुपए से गालिबन हिस्सा लिया। ये हमारे फहीमुद्दीन साहब ने 100 रुपए से हिस्सा लिया, एक साहब ने 20 रुपए। ये हमारे ताहिर का, अच्छा माशाअल्लाह। देखिए 70 साल के बूढ़े को देखिए, आज भी अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है साहब, कि माँ बाप को गए हुए सदियां गुजर गई मगर 200 रुपए देके। अच्छा नारा देगी के मुकीमुद्दीन भाई, अल्लाह ताला इनके जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। आपके जलसे में इसने 500 रुपए से हिस्सा लिया, तमाम हवादिसात ज़माना से महफूज के लिए इन्होंने भी हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इनके माँ बाप की मगफरत फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको बताता चलूं अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चियों की मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो मालूम है उन्हें दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करना पड़ेगा और दीनी तालीम से भी आरास्ता करना पड़ेगा। ये भी हमें सोचनी पड़ेगी कि हमारी बेटी स्कूल भी जाए, कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी भी जाए, डॉक्टरनी भी बने, प्रोफेसर भी बने, इंजीनियर भी बने, मगर पर्दे में रहकर, हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर। अल्लाह ताला इनकी नानी की जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। एक बात बताइए, सब लोग मेरे तरफ देखिए, बताइए मस्जिदें दुनिया में बेशुमार है कि नहीं, लेकिन बताइए सारी मस्जिदों में गिलाफ है क्या? नहीं है ना। एक मस्जिद दुनिया के अंदर तन्हा है, काबतुल्लाह के अंदर, जिसमें गिलाफ। मस्जिदें तो बहुत सारी हैं, नमाजें हर जगह पढ़ी जाती, मगर गिलाफ वही क्यों? अच्छा बताता हूँ इसकी वजह, दूसरी वजह बताता हूँ। नारे तकबीर। 15 मिनट के अंदर पूरी पैगाम को मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
अच्छा, अल्लाह इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये इन्होंने मुझे खास करके दिया, अल्लाह ताला इनकी नस्लों को आबाद फरमाए। अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, गौर से सुनिए मेरे भाई, कॉलेज में भी पढ़ाइए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाइए। हमारी कौम की बच्ची डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, मगर हमारी बेटी पर्दे में रह करके इंग्लिश पढ़े, पर्दे में हिजाब लगा करके MA करे, BA करे। आपको बताना चाहता हूँ, आप ही की बंगाल की एक तारीख पढ़ता हो, बंगाल ही की एक बेटी, जिस बेटी का नाम सानिया है, उस बच्ची को लाई के मुबारकबाद देता हो, उसका कोई जवाब नहीं। उसके सानिया के माँ बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ। इसी बंगाल की बेटी है और आपकी बेटी भी है। ये बेटी सानिया कोलकाता के बगल की एक देहात की रहने वाली ये लड़की है। मालूम है, इस बच्ची ने IPS ऑफिसर बनी। बोले सुभान अल्लाह। क्या बनी? IPS ऑफिसर। मगर मालूम है, ये बच्ची बचपने से हिजाब लगा के IPS की तालीम तक हिजाब लगा के गई। ये बच्ची माध्यमिक पास किया, स्कूल जाती रही हिजाब लगा के, कॉलेज भी गई हिजाब लगा के, BA किया तो हिजाब लगा के, यूनिवर्सिटी गई तो हिजाब लगा के। आलम ये हुआ, ये बेटी बच्ची, यानी गौर से सुनिए मेरी माँ बहने, सानिया नाम की लड़की IPS ऑफिसर बन गई। इसका इंटरव्यू हुआ, मीडिया वाले आ गए, बहुत बड़े हाल में, जहां साइंटिस्ट भी बैठे हैं, डॉक्टर से भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। उस पढ़े लिखे मजमा के अंदर सानिया नाम की बच्ची से सवाल हो रहा है, ए सानिया, तुम तो मुसलमान की बेटी हो, तुम IPS ऑफिसर बन चुकी हो, तुम हिजाब लगा के कॉलेज का रुख किया, हिजाब लगा करके बुर्के की हालत में तुमने यूनिवर्सिटी का रुख किया, लेकिन अब तो हिजाब पर पाबंदी है, अब तुम कैसे ड्यूटी करोगी? अगर ड्यूटी करना पड़ेगा तो हिजाब उतारना पड़ेगा, ये नारा दिया जाता है। बेटी सानिया, तुम क्या करोगी? क्या हिजाब उतारोगी? तो इस बंगाल की बेटी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की बेटी को एक पैगाम दिया और इस पैगाम पर तुम भी अमल करो। अब सानिया का स्टेटमेंट क्या है? सानिया कहती है, ओ मीडिया वालों सुनो, तुम्हारा सवाल है कि बुर्का उतार करके मैं जो है ड्यूटी करूंगी। तुम ये कहते हो, अरे मैं बचपने से बुर्के में रही हूँ, पर्दे में रही हूँ, पर्दे में रहूंगी, फातिमा की कनीजा थी, कनीजा बन के रहूंगी। मीडिया वालों ने कहा कैसे? सानिया कहती है, अरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने मजहब के मुताबिक, अरे अपने मजहब के मुताबिक चोला पहन करके पूरे भारत को चला सकता है। अरे उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ अपने मजहब के मुताबिक धोती पहन करके पूरे राज्य को चला सकता है, तो मैं मुसलमान की बेटी हिजाब पहन करके फिर ड्यूटी क्यों नहीं कर सकती? नारा नहीं लगाओगे? अरे लगाओ यार, लगाओ जोरदार। एक नौजवान लगाए कोई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक 100 रुपए करके 3 लोगों ने दिया। मालूम है क्या पैगाम दिया? IPS ऑफिसर बन करके ये बता रही है कि मैं ड्यूटी भी करूंगी, यानी हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक मैं अपना काम भी करूंगी और नबी की शरीयत की रोशनी में मैं हिजाब भी लगाऊंगी। मुझ पे कोई पाबंदी आयत नहीं कर सकता। जितने पढ़े लिखे लोग थे सारों ने दादा तहसीन से नवाजना शुरू कहा, बारे बेटी तेरा कोई जवाब नहीं, जो शरीयत पर अमल करता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। ऐसे अपनी बेटियों को पैगाम दो, हमारी बच्चियां पढ़े, मना नहीं, मगर पर्दे में रह करके पढ़े, दीन भी सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ। इतनी तालीम दे दो बच्चियों को, पता चले निकाब का मकाम क्या है, पर्दे का मकाम क्या है। यही रोक के एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर बहुत सी मस्जिदें हैं, खिलाफ सिर्फ खाना काबा के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत सी कब्रें हैं, मगर चादर सिर्फ मजार के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत सी किताबें हैं, इंजील भी है, ज़बूर भी है, मैथ भी है, बायोलॉजी भी है, मगर सिर्फ
गिलाफ कुरान के अंदर, क्यों? ताकि दुनिया को पता चले जिसके अंदर गिलाफ होता है वो सारी चीजों से मुमताज होता है। तमाम मस्जिदों से आला मस्जिद का नाम जिसके अंदर गिलाफ चढ़ा है वो मस्जिद हराम है। और किताब कुरान में गिलाफ चढ़ा के बताया जाता है, किताबें सब है, तमाम किताबों में आला कुरान है। और मुसलमान की बेटी अगर हिजाब पहन के चली जाए दुनिया को पता चल जाए और कौमों की बेटियां और है, ये मुसलमान की बेटी है, ये फातिमा की कनीजा। एक भाई ने 50 रुपए दिया। टाइम भाई मेरे पास बहुत कम है, आखिरी पॉइंट सुनिए। बातें तो बहुत सारी जहन में है, लेकिन आपका शहीदा खतीब, आपका महबूब खतीब, क्योंकि भाई रोने के स्टेज है, ये हमारे मेहमान हैं, हम भी इन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। मुझे तो आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन आखिरी बात सुन करके चले मेरे दोस्त। मालूम है मेरी कौम की और दुनिया को ये पैगाम दो, मैं कहता हूँ तारीख पढ़ो। तारीख पढ़ते क्यों नहीं? तुम तारीख नहीं पढ़ते इसीलिए पीछे हो। तारीख पढ़ो तो पता चले और दुनिया को बताओ तुम हमारी बच्चियों की हिजाब उतारने पे लगे हो। हमने तुम्हारी बेटी की हिफाजत के लिए दिल्ली से बनारस गया। बताता हूँ तारीख के औरात को, 7 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू सिमेट करके अपनी जगह ले लूंगा। 7 मिनट की तकरीर सुन लीजिए। अरे सुनिए, दिल्ली का उस दौर का अजीम बादशाह, मर्दे कलंदर, मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला वो मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर ने, जिस जमाने में पूरे भारत का ये राजा था, जिस जमाने में पूरे भारत का ये महाराजा था, जिस जमाने में पूरे भारत का ये प्रधानमंत्री था, इनकी हुकूमत में, यानी इनकी हुकूमत में बनारस की जमीन पर जो कोतवाल, गौर से सुनिएगा, जो कोतवाल मुकर्रर था उसका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम नाम का मुसलमान था, मालूम है। लेकिन जब जो मुस्तफा का गुलाम अगर कुर्सी पर बैठता है ना, वो ये नहीं देखता कि मेरा अपना है या बेगाना, शरीयत की रोशनी में फैसला करता है। ये मुसलमान होते हैं, मालूम है आपको। ये यानी इब्राहिम जो बनारस का कोतवाल था, एक पंडित की बेटी थी, वो सुबह सुबह बेचारी रोजाना नहाने जाती थी। इस खबीस की उसकी नजर पड़ी और इसकी निगाह बहक गई। अब इसने अपने वजीरों से कहा कि देखो पंडित जी को जाकर कह दो अपनी बेटी की डोली सजाकर बिल्कुल शराफत के साथ मेरे घर तक पहुंचा दे। पंडित आकर के अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या करोगी? बेटी ने कहा, अब्बा क्या किया जाए? कहा सुनो, इससे तो अच्छी बात, यानी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मानेगा नहीं, दोनों नदी में जाकर जान दे देते हैं, क्योंकि ताकि आपकी आबरू ना लूटे, आपकी इज्जत महफूज रहे। गौर से सुनिए, ये बात कहने लगी तो बेटी कहा, नहीं अब्बा, आप बनारस के मार्केट में जाइए, मुगलिया लिबास लेकर के आइए, यानी मर्दों का लिबास। कहा बेटी करोगे का? कहा, बेटी ने कहा अब्बा ये चीज मैं बाद में बताऊंगी। वो मर्दे का लिबास लेके आया, कहा घोड़े का इंतजाम कीजिए। घोड़े का इंतजाम किया, यानी बताना ये चाहता हूँ कि मुसलमान गैरों की बेटी की किस तरह हिफाजत करता है। अब वो मुगलिया लिबास लेके आया, घोड़े पे सवार हुई, सीधा बनारस से दिल्ली पहुंची है। जुमे के दिन पहुंची है। जुमे के दिन मेरे सरकार औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जुमा के दिन सारे परेशान हाल लोगों की परेशानी को पूछा करते थे। नमाज जुमा अदा करके सीढ़ी से जब उतरते, जितने मफलूकुल हाल लोग होते थे, परेशान हाल लोग होते थे, बैठा करते थे। और मेरे औरंगजेब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूछ रहा है, बता तेरी क्या परेशानी है? कहता था इससे रुपया की जरूरत है। अपने वजीर से कहा इसकी परेशानी को नोट किया जाए। किसी ने कहा तेरी क्या परेशानी है? कहा मेरे जमीन का मामला है। कहा इसकी परेशानी को नोट किया जाए। कहा तेरा क्या मामला है? कहा मेरी बेटी की शादी है, पैसे की जरूरत है। हिंदुस्तान का बादशाह ये मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर कहता है इसकी परेशानी को नोट किया जाए। आखिर में वो पंडित जी की बेटी का नंबर आता है। मेरे सरकार औरंगजेब की नजर पड़ती है। कहा बेटी चादर यूं देते हैं। कहा बेटी ये मेरे मजहब के रोशनी में तुम्हारे चेहरे के, तुम्हारे बालों को देखना जायज नहीं है, अपने बालों को छुपा लो। उसके बाद मेरे आका औरंगजेब फरमाते बेटी तेरी परेशानी
परेशानी क्या है। कहा ओ राजा, ओ महाराजा, ये खत ले लीजिए। मालूम है खत को यूं ही नहीं पकड़ते, रुमाल निकालते हैं। रुमाल के जरिए से मेरा शरीयत, मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है गैर महरम की बेटी को छूना हराम है। ये देखो मुसलमान के बादशाह गुजरे हैं, तुम्हारी बेटियों के तरफ निगाह डालने की तो दूर की बात, छूना भी पसंद नहीं करता। अपनी शरीयत की रोशनी में कैसे अमल करता है। इस तरह से पकड़ा, खत को पढ़ा, कहा बेटी अब तुम जो है मेरे दरबार में आ जाना, मेरी हवेली में आ जाना। वो बेटी आती है, वो पंडित जी की बेटी आती है। मेरे आका औरंगजेब फरमाते बता बेटी तेरी परेशानी क्या है। वो पंडित जी की बेटी कहती है आका मामला ये है, आपने बनारस में जिस कोतवाल को मुकर्रर किया है वो इज्जत का लुटेरा है, वो आबरू का लुटेरा है, वो बेटियों की इज्जत को लूटता है। कहते हैं बेटी क्या कहा। कहा देखो मेरे बाप से कहता है कि तुम अपनी बेटी की डोली सजा के शराफत के साथ मेरे घर तक पहुंचा दो। कहा बेटी ऐसा है, वो जैसा कहता है तुम वैसा कर लो। ये रोने लगी, घर आ गई। आने के बाद पंडित जी कहता बेटी क्या हुआ। बेटा तुम बताया करो, किसी के जरिए पहुंचा दिया करो, हजरत किसी को भेज दीजिए ना। हाँ अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। पंडित जी कहता बेटी हुआ क्या। कहा हुआ ये, वो कहता है वो महाराज, वो राजा कहता है कि जैसा कहता है वो वैसा कर लो। कहने लगे बेटी मैंने कहा था ये बेगाने बेगाने होते हैं। तब वो पंडित जी की बेटी कहती है अब्बा जान मगर उसने मुझे 3 बार बेटी कहा है। 3 बार बेटी सीढ़ी पे जब उतर रहा था तब 3 बार बेटी कहा है, और अपनी हवेली में ले जाकर 3 बार उस वक्त बेटी कहा बेटी जैसा कहता है वैसा चला जा। मगर मैं कहती हूँ, पंडित जी की बेटी कहती है अब्बा जान जो इंसान अगर किसी को बेटी कहे तो याद रखना वो बाप हो नहीं सकता। जो बेटी की इज्जत को लुटवा दे वो कभी गवारा नहीं करेगा। याद रखे उसने मुझे बेटी कहा है, मुझे भरोसा है मेरी इज्जत लुटने नहीं देगी। ये एतमाद था गैरों की बेटी पर, हम पर। उसके बाद क्या दे हुआ, फिर वक्ते मुकर्रर, जल्दी जल्दी में पेश करता हूँ। वक्ते मुकर्ररा पर दुल्हन बना करके अब लेके जा रहा है। अब वो इब्राहिम कोतवाल खुशी के मारे सोने की अशरफिया लोगों में तकसीम करता है। उसी भीड़ के अंदर मेरे सरकार औरंगजेब आते हैं। आने के बाद फकीराना लिबास में चेहरे पे नकाब डाला है। ये कहता बे इब्राहिम तू पूरी दुनिया को आज खुशी के मारे अशरफिया तकसीम करता है, मुझे भी दे दे। वो उसको मालूम नहीं था कि औरंगजेब ही है। वो कहता है कि जो नीचे गिरा है ले लीजिए। मेरे सरकार औरंगजेब फरमाते हैं मैं तमाम फकीरों से अलग फकीर हूँ, मैं जमीन का गिरा हुआ नहीं लेता हूँ, मुझे हाथ में दे दे। उसने हाथ में एक अशरफी दी। मेरे सरकार औरंगजेब ने इस तरह से उसकी हाथ को पकड़ा। पकड़ने के बाद अपने चेहरे से पर्दे को हटाया। कहा ओ जालिम मैंने तुझे यहाँ हाकिम बनाया था फैसला करने के लिए, तू बेटियों की इज्जत लूटने लगा, तू बेटियों के आबरू को लूटने लगा। उसके बाद पूरे बनारस के अंदर एक पैगाम दे दिया, बनारस के तमाम मर्द तमाम औरतें सब लोग जमा हो जाओ ताकि आज पता चले चाहे बेटी मुसलमान की हो चाहे बेटी गैर मुस्लिम की हो, अगर उसकी इज्जत पर हमला होगा उसे कुचल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, बेटी की इज्जत लूटने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सारे बनारस के लोग जमा हो गए तो बड़े बड़े हाथी को मंगाया गया। एक हाथी से इब्राहिम का, दूसरा हाथ दूसरे हाथी से बांध दिया और घिसेटता गया। चमड़ी पे कोड़े, पीठ पे कोड़े बरसाता गया और कहा दुनिया वालों को चाहे बेटी अपनी हो या दूसरे की हो, अगर किसी ने बेटी की तरफ निगाह डालने की कोशिश की उसका यही हश्र। ये है हमारे मदरसे के पढ़े हुए औरंगजेब आलमगीर की तारीख। धरती पर कोई ऐसा बादशाह प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा जो दूसरों की बेटियों की इस तरह इज्जत करती हो। उसके बाद फरमाते हैं बेटी मेरे इंसाफ से खुश हो। कहती हाँ खुश हो। उसके बाद कहते हैं वो पंडित जी की बेटी कहती है महाराज थोड़ा कुछ खा लीजिए। कहा बेटी प्यास बहुत लगी है, पानी पिला दो। और औरंगजेब आलमगीर पानी का गिलास लेने से पहले क्या फरमाते हैं बेटी मालूम है तुझे, आज एक बात बताता हूं मैं, जिस दिन तुम मेरे पास दिल्ली गई थी उस दिन ही मैंने कसम खा लिया था जब तक मैंने इस बेटी का इंसाफ नहीं किया तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा।
है कोई धरती पर ऐसा बादशाह, है कोई प्राइम मिनिस्टर, ये तुम्हारी तारीख है। उसके बाद नफली तौर पे उसी जगह 2 रकात शुक्राने के तौर पे औरंगजेब आलमगीर नमाज पढ़ते हैं। उसी जगह पंडित जी ने मस्जिद बना दी, आज भी वो मस्जिद कायम है, उसका मुतवल्ली गैर मुस्लिम। ये तुम्हारी तारीख रही है, लेकिन तुम जलसों में आके आवारा गड्ढा बना दिया, आवारों का अड्डा बना दिया। ये जलसा आवारों का अड्डा नहीं बल्कि दीनी मजलिस है, दीन सीखने की जगह है। इस जगह से आज अहद कर लो, हम कल तक बेनमाजी थे, कल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। जो लोग शराब पीता है अहद कर ले, कल तक शराब पीते थे, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। जो लोग दूसरे की बहन बेटियों की तरफ बदनिगाही डालता है आज से तौबा कर ले। मालिक आज के बाद मैं जलसे में तौबा करता हूँ, किसी की बहन बेटियों को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। जब इस नीयत के साथ तुम तौबा करोगे, अल्लाह तेरी मगफिरत भी फरमाएगा और तेरी दुनिया भी बेहतर बनाएगी और तेरी आखिरत भी बेहतर बनाएगी। इंशाअल्लाह दोस्त, कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, क्योंकि मामला ये है, ये जीवनी जलसा है, आपका चहीता खतीब आ गया। इंशाअल्लाह इसी मैटर पे कभी गुफ्तगू होगी, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है। मेहमान को बैठा करके आपसे गुफ्तगू करना, यह हमारे असातिज़ा ने हमें अदब सिखाया है, बेअदब नहीं बनाया। उन असातिज़ा का लाख लाख शुक्रिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में ये मुबारकबादी पेश करता हूँ नारा देगी कि वो बच्चे, वो नौजवान बच्चे, वो हमारे नौजवान, वो हमारे बूढ़े जिन्होंने एक रुपया इस जलसे के लिए घर घर जाकर के मांगा है, वो तमाम बच्चे लाई के मुबारकबाद है। बेटा तुमने घरों में मांगा अपने लिए नहीं, बल्कि नबी के जलसा को नबी के जलसा को सजाने के लिए, संवारने के लिए। अल्लाह तेरी नस्लों को आबाद करे, तुम्हारी कमाई में बरकत अता फरमाए, तुम्हारी कमाई में बेपनाह अल्लाह बरकत नेमत है उसाते नाम नाजिल फरमाए। अल्लाह तेरी नस्लों को आबाद फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।